Hello students, my name is Rajkumar and welcome again to the Akashdeep online classes. So far we have covered the first section of this chapter. First section में अपन ने क्या देखा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन आवर फर्स्ट सेक्शन. सो नेक्स्ट सेक्शन विल स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ पोर्शन अपन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो उन रियल रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन 10th क्लास. So in this quadratic equation section we will study a special kind of quadratic equation which has discriminant less than 0. ठीक है. तो first of all let's start with the defining the quadratic equation. तो quadratic equations का definition लिखते हैं. That is any equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a cannot be equal to 0 is called quadratic equations. ठीक है. और in short this quadratic equation will refer as QE. ठीक है. Q stands for quadratic, E stands for equation. Here we can say A, B and C, these are called constants, and here x is the variable whose value we are supposed to find. ठीक है. तो यहाँ पे तीन चीज़ें A, B and C. A, B और C कांस्टेंट है, बट A और A, B and C के लिए अलग अलग नाम भी रखे गए हैं, वो भी देख लेते हैं. Here A we can say A is multiplied with x square, so for A we have this name coefficient of x square बोलते हैं, or we can say this is the leading coefficient. Why leading coefficient? Because it is multiplied with the highest exponent of x. Highest exponent of x क्या है? x square. तो x square के साथ में क्या multiply कर रखा है? That is a. So a is called coefficient of x square or leading coefficient. B is called the coefficient of x, and C is called the C is referred as either constant term or एब्सोल्यूट टर्म. ठीक है. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए. एक्स का और कांस्टेंट टर्म नहीं आए तो भी चलेगा. तो मैक्सिमम एक्स का एक्सपोनेंट क्या एक्सेप्टेबल है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज 2 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ वी हैव सीन सम मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन से मेथड्स देखे थे उनको एक बार लिस्ट आउट करते हैं. मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसके अंदर अपने इस कैटेगरी में अपने 2 या 3 मेथड देख चुके हैं इन 10th स्टैंडर्ड. फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Second we have perfect square method. Third method we have that is Sridhar-Acharya formula. Sridhar-Acharya method या फिर formula. ठीक है. So all these method we already studied in case of real numbers. When we are having the real roots we can make use of either of the method and we can find the roots of the quadratic equation. और कोई भी quadratic equation की roots के nature किस पे decide होती है? We can decide the nature of quadratic equation with the help of discriminant. ठीक है. तो discriminant से अपन कोई भी quadratic equation की nature का कैसे पता करते हैं? तो मान लिया कि let ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equal to 0 is a quadratic equation. ठीक है. तो यहाँ पे अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं that is d is equal to b square minus 4ac, and for d we have name, so d is called discriminant. ठीक है. So here we have cases if d is greater than 0 then our roots will be real and distinct roots. ठीक है. अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तब अपने रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल रूट्स होंगे और अपने को दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे. इफ़ d इक्वल्स टू 0
then we will have real and equal roots. Real and equal roots. If d less than 0, then we have imaginary roots. ठीक है, तो इस सेक्शन में अपन ये जो थर्ड वाला है इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. तो रियल रूट्स निकालना तो अपने को आता है. वी कैन मेक यूज ऑफ इधर प्राइम फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड द रियल रूट्स. तो 10th स्टैंडर्ड तक के अपन लोगों ने एक कैटेगरी छोड़ दिया था, दैट इज इमेजिनरी रूट्स. हाउ कैन वी सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन दैट डी इज लेस देन 0. ठीक है, तो वो अपन अभी देखने वाले हैं. तो उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, ऑल दिस थिंग्स सी विल सी नाउ. सो लेट्स से आई हैव दिस ax square plus bx plus c equals to 0. This is a quadratic equation where a is not equal to 0. So let's say I define the discriminant is equals to d equals to b square minus 4ac and let's say d is less than 0. If my d is less than 0, then my roots will be imaginary roots. तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे. सो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो d का वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आ गया. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में से एक माइनस कॉमन लिया. सो हियर वी हैव माइनस 1 इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a. अभी यहाँ पे क्या -1 तो नेगेटिव है और 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या पॉजिटिव है. तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है कि एक नंबर नेगेटिव होता है, एक नंबर पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर रूट को अपन मल्टीप्लिकेशन पे ब्रेक कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2a. और स्क्वायर रूट ऑफ -a को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे. इफ़ आई टेक प्लस साइन एंड दैट रूट इफ़ आई कॉल इट एज एल्फा, तो इसके रूट्स आ जाएंगे. रूट्स आर पहला रूट एल्फा मान लिया, सो दैट विल बी माइनस बी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. दूसरा रूट है बीटा, दैट इज माइनस बी माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. ठीक है, सो दिस वे वी कैन मेक यूज ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज एंड वी कैन फाइंड द roots of a quadratic equation when the discriminant is less than 0. So let's try to understand with the help of an example. ठीक है, तो एग्जाम्पल है अपने पास. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया. सो हियर वी हैव a इक्वल्स टू a, b, c all are equal to 1 and if I find the discriminant that is b square minus 4ac. So here b value is 1 minus 4 into 1 into 1. So this becomes 1 minus 4 that is minus 3 which is less than 0. So I can say this quadratic equation has imaginary roots. ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो विल मेक यूज ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. नाउ वी कैन प्लग इन ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड द आंसर. सो b वैल्यू इज -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू a इज 1 c इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 1. सो हियर वी हैव -1 प्लस माइनस आयोटा, हियर वी हैव 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2. सो हियर वी हैव -1 प्लस माइनस आयोटा 4 minus 1 is 3. So square root of 3 by 2. So here we have got two roots. Both roots are imaginary roots and roots can be given as, let's say first root is alpha, that is -1 plus iota root 3 by 2, and second root, let's say that root is beta,
दैट कैन बी गिवन एज -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पे अपने पास इस इक्वेशन के कितने रूट आ चुके हैं? हियर वी हैव 2 रूट्स। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या बोलती है? तो इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ 1 रूट। ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ at least one रूट। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी पोलिनोमियल लिया, अगर उस पोलिनोमियल को अपन इक्वल टू 0 के इक्वल सेट कर देते हैं तो दैट बिकम्स द पोलिनोमियल इक्वेशन। तो आप दुनिया में कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन उठा लो, उसके एटलीस्ट 1 रूट तो मिल जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन उठाया x + 3 = 0, तो वहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? -3। दैट इज द रूट फॉर दैट पोलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक लोगे तो 2 रूट मिलेंगे, क्यूबिक लोगे तो 3 रूट मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इफ यू टेक एनी पोलिनोमियल इक्वेशन दैट विल हैव एटलीस्ट 1 रूट। इट कैन हैव मोर देन 1 रूट, बट कम से कम 1 रूट होना तो कंपलसरी है। ठीक है, इसी लाइन पे सेकंड चीज क्या हो गया? ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n will have exactly n roots। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री n है, जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक का डिग्री कितना होता है? 3, तो इसके 3 रूट्स आएंगे। तो दैट्स द डिफरेंट थिंग कि तीनों रूट रियल आ जाए, 1 रूट इमेजिनरी आ जाए, 2 रूट रियल आ जाए, बट उसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स। मतलब जितना पोलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री होता है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन विल हैव द रूट्स विच इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, हाउ कैन वी सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस दे रखा है उसको a, b और c का वैल्यू निकाला, और वहाँ से करना क्या है, वहाँ से वी कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला एंड विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है? सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x² + 2 = 0। इसको सोल्व करना है, तो इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं इजीली विदाउट फॉर्मूला अप्लाई किए। x² = -2, तो इसमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो x² = कितना हो जाएगा? +- तो ये कितना हो गया? प्लस स्क्वायर रूट को ब्रेक किया तो ये हो गया √1 × √2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? +- कैन बी रिटन एज आयोटा, दैट्स √2। तो यहाँ से x के 2 वैल्यू आ गए। फर्स्ट रूट लेट्स से +i√2 एंड सेकंड रूट इज -i√2। इसको α1 बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, या इसको अल्फा बोल दिया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आ गए? 2 रूट आ गए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज i√2 एंड बीटा इज -i√2। तो इसके कितने रूट्स आ गए? 2 रूट्स आ गए, एंड बोथ रूट्स आर इमेजिनरी बिकॉज हियर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव √5x² + x + √5 = 0। तो सबसे पहले तो इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया। सो हियर a = √5, b = 1 एंड c = √5। तो इसमें मैं इफ़ यू फाइंड द d दैट इज गिवन एज b² - 4ac, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? b का वैल्यू 1 है, 1² - 4 × a इज √5 एंड c इज आल्सो √5। So here we have 1 - 4 × 5, 4 × 5 20, 1 - 20 -19 is less than 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन से आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? b² - 4ac = -19। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो हियर वी हैव 4ac - b² = 19। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो वो फॉर्मूला क्या था, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 19 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2√5। दोनों को सेपरेट कर दिया, सो हियर वी हैव -1 अपॉन 2√5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2√5। ठीक है, तो यहाँ से अपने इस इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए, सो हियर वी हैव 2 रूट्स। लेट्स से फर्स्ट रूट इज अल्फा, सो यहाँ पे पहला रूट कितना आ गया -1 अपॉन 2√5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 2√5। सेकेंड रूट इज बीटा दैट इज -1 अपॉन 2√5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 2√5। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, 2 रूट्स आ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो इसको तो विदाउट फॉर्मूले से हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू -3 टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो हियर वी हैव प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो गया -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब आगे, इसमें -1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 कैन बी रिटन एज आयोटा, हियर वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये इसके आंसर आ गए। लेट्स से फर्स्ट रूट इज अल्फा, so alpha is iota root 3 and second root is beta, so beta will be minus iota root 3। तो ये इसके 2 रूट आ गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपने के इस इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो a b c निकाला, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 1, तो हो गया 1 माइनस 8 दैट इज -7 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इट मीन्स दिस इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ से मैंने 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला दैट इज 7। ठीक है, अब यूज किया फॉर्मूले का, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। यूज किया, माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, b का वैल्यू 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर दैट इज गिवन बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 2। सो हियर वी हैव -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -1/4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। सो लेट्स से हियर वी हैव 2 रूट्स। फर्स्ट रूट लेट्स कॉल इट एज अल्फा, सो हियर वी हैव -1/4 प्लस iota square root of 7/4. Second root, let's say it's beta, so here we have -1/4 minus iota square root of 7/4. ठीक है, so this way we can find the roots of any quadratic equation. ठीक है, तो next question, that is question number 5. Question number 5 says x square plus 3x plus 9 equals to 0. a b c का वैल्यू निकाला, a equals to 1, b equals to 3, c equals to 9. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 3, सो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू 9, सो 3 स्क्वायर इज 9, दिस इज 13, सो 9 माइनस 36, सो दैट्स कम्स -27. ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो इसके लिए मैंने इसका 4ac माइनस बी स्क्वायर निकाला, दैट इज 27. फॉर्मूला अप्लाई किया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इमेजिनरी नंबर वाला, तो अपन किया माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a.
तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी का वैल्यू 3 दे रखा है प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस 2 को डिवाइड कर दिया आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 27/2। तो फर्स्ट रूट को अल्फा कंसिडर किया, सो अल्फा इज -3/2 प्लस आयोटा रूट 27/2, एक रूट तो ये आ गया। सेकेंड रूट को अपन ने बीटा कंसिडर किया, बीटा -3/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 27/2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन दे रखा है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। सोल्व किया, d निकाला, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2। सो हियर वी हैव 1 माइनस 4 इंटू 2 8, सो दैट इज -7। तो -7 आ गया, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। सो यहाँ से मैंने 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, दैट इज 7। यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से कितना का -b का वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है 1। सो हियर वी हैव -1/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। सो फ्रॉम हियर वी गेट 2 रूट्स, वन इज अल्फा विच इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। ठीक है, एंड सेकेंड रूट इज बीटा, दैट इज -1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 3 है, सो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इक्वल्स टू 5। तो ये 9 माइनस 20 इज -11। तो यहाँ से 4ac माइनस बी स्क्वायर निकाला, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 11। तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, वैल्यू रखा -b का वैल्यू 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 11/2a मतलब 2। यहाँ से हो गया -3/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11/2। तो दो इमेजिनरी रूट आ गए, फर्स्ट इमेजिनरी रूट इज अल्फा दैट इज गिवन बाई -3/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11/2। सेकेंड रूट इज बीटा दैट इज गिवन बाई -3/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11/2। ठीक है, तो दो रूट आ गए इसके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू 2, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 इज -7। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर निकाला, 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। फॉर्मूला अप्लाई किया -b का वैल्यू कितना है -1, सो दिस इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7, 2a मतलब 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। तो यहाँ से दो रूट आ जाएंगे, फर्स्ट रूट इज अल्फा दैट इज गिवन बाई 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। सेकेंड रूट इज बीटा दैट इज गिवन बाई 1/2, नाउ हियर वी टेक माइनस साइन, सो आयोटा रूट 7/2। ठीक है, तो अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना हो गया √2, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया √2. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, दैट इज b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू √2, c का वैल्यू √2. सो हियर वी हैव 1 माइनस 4 इंटू 2, ये कितना हो गया -7. तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो 4ac माइनस b² का वैल्यू कितना हो जाएगा 7. तो यहाँ से लेट्स फाइंड द रूट्स, दैट इज x इक्वल्स टू -b, सो -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b², दैट इज 7 अपॉन a, 2a मतलब 2√2. तो यहाँ से दो रूट आ गए, अल्फा इक्वल्स टू -1 अपॉन 2√2 प्लस आयोटा √7 अपॉन 2√2. ये तो पहला रूट हो गया, दैट इज अल्फा, और सेकेंड रूट का नाम दे दिया बीटा, दैट विल बी गिवन बाई -1 अपॉन 2√2 माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2√2. तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस टू डू. लेट्स जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया √3, b का वैल्यू कितना आ गया -√2 और c का वैल्यू कितना आ गया 3√3. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, दैट इज b² माइनस 4ac. तो यहाँ से b का वैल्यू -√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √3 इंटू c का वैल्यू 3√3. सोल्व किया, ये हो गया 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 2 माइनस 36, तो ये हो गया -34. तो यहाँ से मैंने 4ac माइनस b² का वैल्यू निकाला, दैट इज 34. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट. फॉर्मूला अप्लाई किया, x इक्वल्स टू -b, सो माइनस ऑफ -√2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 34 बाई 2a, दैट इज 2√3. सिंप्लीफाई किया, √2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 2√3. सेपरेट करके लिखा और पहले रूट को अल्फा नाम दिया, सो अल्फा विल बी √2 अपॉन 2√3 प्लस आयोटा √34 अपॉन 2√3. ये तो फर्स्ट रूट हो गया. सेकेंड रूट विल बी बीटा, दैट विल बी गिवन बाई √2 अपॉन 2√3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 2√3. ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेज x² प्लस x प्लस 1 ओवर √2 इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है. तो सबसे पहले तो इसका a का वैल्यू चेक किया. a काम किया, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया √2, b का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना हो गया 1. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मतलब √2, c मतलब 1. तो अगर 2 माइनस 4√2, तो 2 माइनस 4√2 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज 4√2 इज ग्रेटर देन 2. तो 2 में से 4√2 घटाएंगे तो लेस देन 0 आएगा. तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें 4ac माइनस b² निकाला, दैट विल बी 4√2 माइनस 2. फॉर्मूला अप्लाई किया सिद्धाचार्य, x इक्वल्स टू -b, दैट इज -√2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b², इसका वैल्यू है 4√2 माइनस 2 अपॉन 2a, सो दैट विल बी 2√2. ठीक है, अब क्या किया कि √2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस आयोटा, और तो √2 अगर कॉमन ले लिया ऊपर से, तो √2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, सो हियर विल हैव √2 कॉमन लेने के लिए समझो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने के बाद में क्या हो जाएगा, इफ़ यू टेक द 2 कॉमन, इफ़ यू टेक 2 कॉमन देन 4 में से 2 कॉमन आएगा, तो 4 में से 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा और वो √2 के टाइप से बाहर निकल जाएगा. तो हियर विल हैव
2√2 minus 1 upon 2√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा. सो हियर विल हैव -1 प्लस माइनस आयोटा 2√2 minus 1 upon 2. तो यहाँ से भी दो रूट आ जाएंगे. वन इज -1 प्लस साइन के साथ आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अल्फा, एंड एक आ जाएगा माइनस साइन के साथ, दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस x बाई √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना है 1 बाई √2, c इज द कॉन्स्टेंट टर्म, c इक्वल्स टू 1. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 1 बाई √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ गया 1 बाई 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 7 बाई 2. तो ये दिस इज लेस देन 0, तो इसके लिए मैंने 4ac माइनस b स्क्वायर निकाल लिया, दैट इज गिवन बाई 7 बाई 2. नाउ विल मेक यूज ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज माइनस b का वैल्यू कितना है 1 ओवर √2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर, दैट इज 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2. तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √7 बाई 2√2 हो गया. अब 2√2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दिस विल बी -1 अपॉन 2√2 प्लस माइनस आयोटा √7 बाई 2√2. तो एक पहले रूट को नाम दे दिया अल्फा, सो अल्फा विल बी -1 अपॉन 2√2 प्लस आयोटा √7 अपॉन 2√2. तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ, ये फर्स्ट इमेजिनरी रूट आ गया. तो सेकंड इमेजिनरी रूट को बीटा नाम दे दिया, दैट विल बी -1 अपॉन 2√2 माइनस आयोटा √7 अपॉन 2√2. ठीक है. सो दिस वे we can find the roots of any quadratic equations which has d less than 0. ठीक है. So in next section, in next video lecture, we will start with the miscellaneous question and the miscellaneous exercise. So with that we'll end up this lecture. So I think most probably you will be having 2 or 3 more video lecture for this chapter, and with that we'll wind up this chapter called complex number and quadratic equation. So I hope that's enough for this lecture.